नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। भारत एट कान, जी हां, 16 से 27 मई तक 76वां कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर से कलाकार, मॉडल, महान फिल्म निर्माता और निर्देशकों का जमावड़ा कान फिल्म महोत्सव इस बार बेहद खास है, खासकर भारत के लिए। फिल्मों के इस महान उत्सव में जहां दुनिया भर के फिल्मी सितारे रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं, तो भारतीय सितारों का जलवा भी कुछ कम नहीं है, चाहे बात भारतीय सिनेमा की हो या फिर भारत पवेलियन की। आज कान फेस्टिवल का 9वां दिन है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फेस्टिवल में और जानते हैं कि आज क्या कुछ रहा खास। नमस्कार, भारत एट कान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। कान में चल रहा है फिल्म फेस्टिवल। 16 से 27 मई तक दुनिया भर के सितारे कान पहुंच रहे हैं। कान की गलियां फैशन स्ट्रीट बन चुकी हैं। कौन से वो भारत के सितारे हैं जो कान पहुंच रहे हैं और किन मुद्दों पर भारतीय पवेलियन में हो रही है चर्चा, बताएंगे आपको अगले आधे घंटे हमारे इस खास कार्यक्रम भारत एट कान में। कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान सबसे ज्यादा हलचल भारतीय पवेलियन में देखी जा रही है और जब भारत के सितारे भारतीय पवेलियन में पहुंचते हैं तो लोगों का जमावड़ा लग जाता है। डायना पेंटी भारतीय पवेलियन में पहुंची और चर्चा हुई फैशन की। क्या कुछ कहा डायना पेंटी ने, सुनाते हैं आपको। You know, I've always from the very beginning been, my aesthetic is very minimal and kind of classic. So whenever I'm shopping, whether it's been years ago or even now, I tend to buy classic pieces that I know I can use over and over again and many years down the line. Of course, I do also like to experiment with trends every now and then. But for the most part, I think that that's the way forward now, where you pick and choose pieces that you know are going to last you a lifetime, maybe not a lifetime, but you know what I mean, like last you many years, and that you can re-wear or maybe restyle, you know, style in a different way but wear it again. So I personally am very for sustainable fashion. I actually feel really bad about buying very expensive things and then using them only once or twice. There's just something not right about that in today's, in today's world. So yeah, I mean, I think that that's the, moving forward, that is what more and more people across the globe are doing. Celebrities are doing it, so and hopefully it will catch on sooner than later. And you can't go wrong with being classic. Of course, and, being, exactly. Being classically dressed. So this is by Falguni and Shane. We've been in touch over the last week, maybe. This was, created very quickly, actually. My stylist Namita and myself were on a joint board with Falguni and Shane, and we were talking about what we should wear to the India Pavilion. And it was Namita's idea that colored stones are very in right now and having a moment. And what better way than to use that in a very Falguni and Shane way on one of their creations and one of their silhouettes. So it kind of all came together very quickly, hurriedly, but we managed to pull it off, and you can see. So it's kind of like taking a current trend but also keeping it Indian in a way. That I can see. I was walking on the street, crossing over from the other side to here, and I heard a lot of the locals saying, "Oh, she must be Indian. She must be Indian." That's great. And looking at the outfits, so I guess we did well from that point of view. कान में इस बार भारत की 4 फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है। उन 4 फिल्मों में फिल्म आगरा भी है। आगरा फिल्म के राइटर डायरेक्टर कनु बहल से हमने खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उनकी पूरी टीम उनके साथ मौजूद थी। क्या खासियत है इस फिल्म में, जाना हमने उनकी टीम से।
कान में भारत की जिन 4 फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है उसमें आगरा भी है और आगरा के डायरेक्टर राइटर कनू बहल भी इससे पहले कान में उनकी एक फिल्म तितली जो है वो प्रदर्शित की जा चुकी है। हमारे साथ पूरी कास्ट है और पूरी टीम है। अगर देखा जाए आगरा की तो हमारे साथ मोहित है, एक्टर है इसमें, कनू बहल खुद हमारे साथ मौजूद है। बड़े चर्चा इनकी इस वक्त न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में चल रही है फिल्म को लेकर। पारुल है, डिजाइनर है, साथ साथ हमारे साथ सौरभ है, सिनेमेटोग्राफर है। सबसे पहले कनू बहल आपसे ही चर्चा की शुरुआत, क्या खास इस फिल्म में जो जिसके लिए इसको कान में चुना गया प्रदर्शन के लिए, आपको क्या लगता है? ऐसे पूछा जाए तो हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि खास क्या है, क्योंकि हम तो शुरू से निकले थे एक ऐसी कहानी कहने जो सबसे पहले मेरे लिए बहुत निजी रही है और फिर साथ साथ जैसे लोग जुड़ते गए, मोहित जुड़ा, उससे पहले पारुल एज प्रोडक्शन डिज़ाइनर, सौरभ एज डीपी, जैसे जैसे हम इस कहानी के साथ जुड़ते गए, हमारे लिए कि बहुत निजी एक्सपीरियंस था जो हम एक ऑडियंस के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम तो आप सच पूछे तो हम तो थ्रू आउट इसी में ही बिजी रहे हैं कि किस तरह से इस फिल्म को क्रिएट किया जाए, बनाया जाए कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो कहा जा सके। और अभी भी हम एक तरह से फिल्म पे ही काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए मैं इतना दूर भी नहीं हूँ इस समय फिल्म से कि मैं कह पाऊँ कि इसमें क्या खास है। बट हाँ, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी फिल्म है जो कहने की कोशिश की गई है जो जितनी सच्चाई से हम सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल रिप्रेशन और जिस तरह के घरों में हम रहते हैं और किस तरह से हमारी जो सेक्सुअल लाइव्स हैं वो जिन घरों में हम रहते हैं उनको अफेक्ट करती हैं, फिजिकल स्पेस को अफेक्ट करती हैं, और जो घर जिनमें हम रहते हैं वो हमारी सेक्सुअल लाइव्स को वापस किस तरह अफेक्ट करती है, इसके बारे में हम कुछ बात करना चाह रहे थे। और इसके आसपास हम एक बिगर कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे थे, तो हम तो वही करने में अभी भी व्यस्त है। स्पेशल क्या है वो तो जैसे जैसे अब दर्शकों के पास फिल्म पहुंचेगी और उनका एक्सपीरियंस सामने आएगा वो पता चलेगा। फिर एक ऐसे जीवंत परिवार उसमें दिखता है आपकी फिल्म की अगर बात की जाए, और कई बार कुछ साधारण बातें बताने में भी बड़ा टफ रहता है, सरल बात बोलने में भी बड़ा कठिनाई होती है। इस फिल्म में आपने वही किया है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा तो न मैं नहीं कहूँगा। आप कोई भी काम करें, किसी भी तरह की फिल्म बना रहे हैं, उसमें कठिनाई तो वो बनाने में आती है। कोई भी फिल्म आसान नहीं होती है। बस यही है कि जितनी कठिनाई आपको आती है वो इसी बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी सच्चाई से जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं। और आई थिंक इसीलिए हमको थोड़ी ज़्यादा शायद कठिनाई आई है, क्योंकि सच जो था इस पूरे मामले के आसपास, कहानी को लेके, उसको दर्शाने को लेके, वो हमें अपने आप मिलता गया, वो अपने आप को उगलता गया। और सच ने जब उगलना बंद ही नहीं किया तो हम सब मजबूर हो गए कि अब ये जो सच मिल रहा है इसको जितनी सच्चाई से कहा जा सकता है वो कहा जाए और इससे भागा ना जाए, इससे दूर ना जाया जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो बनाने में या आगे आई या पीछे आई, जो भी है। पर हम वहीं से ये पूरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। राइटर जब किसी फिल्म को लिखता है, मोहित आपने तो लीड रोल किया है, राइटर जब कोई फिल्म को लिखता है तो उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है उस कैरेक्टर से। उस कैरेक्टर को जीने में आपको क्या लगा, कितना इम्पोर्टेंट वो कैरेक्टर है और कैसे आप खुद को उस कैरेक्टर में ढाल पाए? जी, आई थिंक जहाँ तक इम्पोर्टेंट होने की बात है, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज ये कैरेक्टर एक वो सच्चाई की बात कर रहा है जिसकी जो इंडिया ऑडियंस में, पूरे भारत में लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये एक रिप्रेस चीज़ है जो हमेशा दबाई जाती है, या फिर वो काफ़ी टाइम अनअवेयर हो जाते हैं ऑफ ऐसी चीज़ें जो उनके खुद के अंदर हैं या हमारी सोसाइटी में चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ तक कैरेक्टर में ढालने की बात है तो आई थिंक हमारी एक लंबी वर्कशॉप हुई अराउंड 3 महीने की, एंड वो वर्कशॉप ने बहुत बड़ा साथ दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे वो एज मोहित गुरु को बाहर से पहले समझना पड़ा एंड देन उसके साथ फील करना पड़ा क्या वो एक्चुअली फील करता है। एंड फिर एक गुरु में एक अजीब सा पागलपन है जो पागलपन प्ले करने के लिए मेरे को एक्चुअली उसके सारे गुरु के जो सच हैं वो समझने पड़े। एंड हाँ, मतलब आई डोंट थिंक कोई कैरेक्टर प्ले करना आसान होता है। चैलेंजिंग था?
ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज अब जब आप फिल्म देखेंगे या दर्शक फिल्म देखेंगे तो समझ आएगा उसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपके बहुत एक पर्सनल स्पेस से आते हैं, और टू पुट दैट आउट, वो चीज़ कैमरा पे करना, वो पार्ट ऑफ कोर्स टफ था, लेकिन वो एक एक्सटेंडेड वर्कशॉप थी मेरे लिए, क्योंकि हम उस वर्कशॉप में जहाँ तक न्यूडिटी की बात आती है, जहाँ पे सेक्सुअल इवन डिस्कशन की बात आती है, ये सब चीज़ें वो हैं जिसके साथ आई थिंक मैंने इनफ टाइम मुझे बिताना पड़ा, और जिसके बाद मैं ये कैरेक्टर के थोड़ा शायद करीब आ सका, आई गेस। पारुल हमारे साथ है। पारुल, कई फिल्मों में इससे पहले भी आपने काम किया है, सारी चीज़ें देखी हैं, क्या नया आपकी तरफ से इस फिल्म में था? हाँ, दिस इज़ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या नया था? आई थिंक जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो यूजुअली जो स्टोरी होती है, इन द सेंस किस तरह वो आप ट्रांसलेट करो स्पेसेस में स्पेसिफिकली, तो एक्चुअली दिस इज़ समथिंग मैं हमेशा सोचती हूँ, क्योंकि जनरली मैंने बहुत लोअर मिडिल क्लासेस बनाया है घर, तो हमेशा मैं सोचती हूँ मैं नया कैसे कर सकती हूँ। आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स सो मच स्क्रिप्ट के ऊपर। तो नया ये है कि आप आई थिंक नया है कि मतलब स्क्रिप्ट ही बिल्कुल नई है, उसकी जो एक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वही बहुत नए हैं, तो अपने आप जो स्पेस है वो भी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही मोल्ड होती है। इन द सेंस प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम ही वही है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो और स्क्रिप्ट को स्पेसेस में उसको बेसिकली बनाओ, जो मतलब स्क्रिप्ट में है उसे स्पेसेस में दिखाओ। तो आई थिंक वो नया है, आई गेस। हाँ सौरभ, सिनेमेटोग्राफर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। डायरेक्टर और राइटर जो लिख रहा होता है, डायरेक्टर और जो डायरेक्शन कर रहा होता है, उसकी भावनाओं को समझना और उसको सामने लेकर आना, क्या आपको लगता है कि उसमें आप 100% सफल हो पाए? 100% तो मुश्किल है ऑलवेज। नहीं, वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कान में अब आप आ गए, आपकी फिल्म कान में चुनी गई है, मैं इसलिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे उसको देखा जाए। नहीं, फिल्म का सिनेमेटोग्राफी खाली अकेला नहीं करता हूँ ना, प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही विजन है, तो एक साथ मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता जब सेपरेट करते हैं। सिनेमेटोग्राफर का काम, डायरेक्टर का काम, प्रोडक्शन डिज़ाइन का, मेरे लिए एक ही काम है पिक्चर के लिए। तो आई थिंक यस, आई थिंक like it came out well. I think we managed to do something together which is I think new, at least in the Indian space. बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से बातचीत के लिए। मोहित आपका, कनुबैल आपका, पारुल आपका, सौरभ आपका। हमारे साथ टीम थी आगरा फिल्म की, जिसकी स्क्रीनिंग जो है, जिसकी प्रदर्शन जो है वो कान में 4 फिल्में जो भारत से चुनी गई है उसमें से एक आगरा भी है, और बहुत उत्साहित है टीम, और एक तरीके की नई कहानी है जो लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। डायना पेंटी, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता जैसे कई सितारे कान के रेड कारपेट पर नजर आ रहे हैं। भारत के सितारे जब कान के रेड कारपेट पर चल रहे हैं तो एक से बढ़कर एक ड्रेसेस देखने को मिल रही हैं। भारत के फैशन डिजाइनर्स इनको तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही भारत के 2 फैशन डिजाइनर शैन पीकॉक और फागुनी पीकॉक से हमने खास बातचीत की। क्या कुछ इस बार कान के लिए नया लेकर आए हैं, वो जानते हैं उनसे। फैशन की दुनिया लगातार बदल रही है, लेकिन भारत का कल्चर और भारत का ट्रेंड जो है वो अखंड है। कान की अगर बात की जाए तो किस तरीके से भारतीय परिधानों को रेड कारपेट पर लाया जा रहा है, इस बार नहीं बल्कि कई सालों से तमाम फैशन डिजाइनर्स कई सालों से काम कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ भारत के फैशन डिजाइनर्स हमारे साथ हैं। फागुनी, कान का जो रेड कारपेट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बड़े लंबे समय से फैशन डिजाइनर्स काम कर रहे होते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया का ट्रेडिशन का रेड कारपेट पर आए, फैशन डिजाइनर्स उस ओर कैसे काम कर रहे हैं? आजकल रेड कारपेट एकदम कैन फिल्म फेस्टिवल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडियन सिलुएट्स, इंडियन साड़ीज या इंडियन कल्चर is the best platform to show. And I feel all the actresses who are walking the red carpet are doing such beautiful Indian looks. It's good to see that and maintain the Indian culture. But आजकल अभी साउथ एशियन कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है, चाहे यूएस में है या चाहे वर्ल्ड में है, तो लाइंस आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्लर्ड, जहाँ पे दोनों कल्चर्स, ईस्ट मीट्स वेस्ट, इज नाउ गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. So I think जितना it's important to show the Indian culture, it's good to adapt also to international culture. So I think that is a good blend, a good fusion of Indian and the West culture is a good fusion.
वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर हमारे इंडिया में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कई सारे लोग कारीगर काम करते हैं उस पे। आपको लगता है कि वो इंडस्ट्री में फैशन में आना भी और ज़रूरी है, लोकल फॉर वोकल की जब बात हो रही है? Absolutely. I mean, you cannot sustain a country if you're not local, if you're not going to source locally. And I think that's one thing good about India is that, whenever there was a drop in the, in the international platform where the markets were down, India never got. Because we are self-sufficient. Yeah, because we are self-sufficient. We didn't feel the pinch because we all source local. Most of us buy things. We don't rely on anything from the international market. So I think that's a good thing. Moreover, I would like to say to this is आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स भी इंडिया से एम्ब्रॉयडरी सोर्स कर रहे हैं, इंडिया से रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं. सो इंडिया इज सच a beautiful and vast country which has so much to offer, and I think that is our strength and that is what everyone in India is to be proud about, especially for fashion. जो कारीगरी हमारे पास है इंडिया में वो it is something which is so precious कि कहीं पे दुनिया में वो नहीं है जो हमारे पास है. So whether it is east, west, north, south, we have so many cultures, so many states, so much to offer. So we are really proud to be Indian. रेड कारपेट पर हमने कई भारतीय अदाकाराओं को देखा है और इस बार भी हम देख रहे हैं. डायना पेंटी को हमने देखा, बड़ी सुंदर ड्रेस उनकी लग रही थी और कई और एक्ट्रेसेस रेड कारपेट पर थीं. कितनी मेहनत लगती है इन ड्रेसेस को तैयार करने में और उनको सिलेक्ट करने में? सबसे पहले तो सिलेक्ट करने में भी टाइम लगता है और तैयार करने में तो बहुत टाइम लगता है. सारा जो डायना ने पहना हुआ है सारा हैंड वर्क है, बीडेड है. आई थिंक मोर देन लाइक 200 पीपल हैव वर्कड ऑन इट. 5-6 दिन रात मेहनत की है इसके ऊपर. सो यस, बहुत कारीगरी गई है और बहुत सारे लोग ने काम किया है इसके ऊपर. जब पता चला कि कान के रेड कारपेट पर जाना है तो कितना एक्साइटमेंट सबसे पहले था, जो कि इससे पहले भी आप लोग कई बार डिजाइन करते रहे हैं कई और फेस्टिवल्स के लिए. एक फैशन डिजाइनर होने के नाते जो पहला एक्सपीरियंस होता है कि यार कान के लिए डिजाइन करना है और इस एक्ट्रेस के लिए करना है, तब एकदम क्या दिमाग में आता है? आई थिंक कान इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है वेर सबको अपना फैशन बेस्ट लाना है और ग्लोबली इतना एक्सपोजर मिलता है सबको. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. कान के लिए प्रेप चालू हो जाता है 3 महीने पहले से. एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन देयर लुक्स. शायद दुनिया भर में कई और फेस्टिवल्स होते हैं पर कान उनमें से एक है, बहुत चर्चित फेस्टिवल जो टॉप 3 है उनमें से एक आता है. इंडियन फैशन डिज़ाइनर होने के नाते ना सिर्फ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के तमाम और फैशन डिज़ाइनर्स को. फैशन डिज़ाइनर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म या कोई भी रेड कारपेट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? I think it's a very important platform, not only Cannes but everywhere. If there is a big red carpet, because that's where you get to show your culture, that's where you get to show your creativity, that's where you get to represent your country also. So I think it's a very important platform for designers. Thank you so much. And it's a credible platform also. Thank you so much. शैन पिकॉक और फागुनी पिकॉक हमारे साथ मौजूद थी. फैशन डिजाइनर्स हैं भारत की और जिस तरीके से रेड कारपेट पर भारत का जलवा जो दिख रहा है ना, वो इन जैसे फैशन डिजाइनर्स की वजह से ही दिख रहा है. भारत का कल्चर जो जितना रिच दिख रहा है, भारत की ट्रेडिशन जो इतना रिच दिख रहा है रेड कारपेट पे, वो आप जैसे फैशन डिजाइनर्स ही हैं जो रेड कारपेट पर भारत के कल्चर को लेकर आ रहे हैं. बड़े सितारे ही नहीं, भारत के छोटे सितारे भी कान के रेड कारपेट पर नजर आ रहे हैं. गुजराती एक्ट्रेस कोमल ठक्कर हैं, कान के रेड कारपेट पर चली हैं और ये उनका दूसरा मौका था. पिछली बार वो पहली बार रेड कारपेट पर चली थी और संभवतः ये पहली बार था जब कोई गुजराती एक्ट्रेस कान के रेड कारपेट पर नजर आई. क्या कुछ कहा कोमल ठक्कर ने हमसे बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं. कान में कोमल ठक्कर हमारे साथ हैं, गुजराती एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं और रेड कारपेट कर आ रही हैं सीधे. ये दूसरा मौका है कोमल का जब वो कान के रेड कारपेट पर नजर आई हैं. पिछले साल भी वो कान के रेड कारपेट पर चली थी और इस बार भी कोमल कान के रेड कारपेट पर है और संभवतः गुजरात की पहली एक्ट्रेस है गुजराती जो रेड कारपेट तक पहुंची है. कोमल, सबसे पहले तो गुजरात से रेड कारपेट तक का ये सफर कैसे डिस्क्राइब करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्ते आप सबको. एंड
गुजरात से कांस का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, मज़ेदार रहा, बिकॉज जब आप रीजनल इंडस्ट्री में काम करते हैं और वर्ल्ड वाइड जब ग्लोबल इंडस्ट्री में आते हैं तो इट्स रियली फील सो प्राउड। और मैं अपना गुजराती इंडस्ट्री और गुजरात का नाम लेके आई हूँ, सो इट्स अमेजिंग फीलिंग। बड़ी खूबसूरत ड्रेस लग रही है आपकी। सबसे पहले तो ये कि क्या सोच के ये ड्रेस डिजाइन हुई है और कितनी तैयारियां, क्योंकि कान में आना, पहले तो ड्रेस फाइनल करना और कई सारी तैयारियां होती हैं। कब से तैयारियां चल रही थी और जब पहली बार आपको पता चला कि एक बार फिर कान जाना है, क्या वो रिएक्शन था? सो ये बहुत बड़ी कहानी है, बिकॉज लास्ट ईयर का ड्रेस मेरा बहुत शानदार था और मैं अट्रैक्शन बन गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि मेरा ड्रेस किसने बनाया, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी जब आप ग्लोबली आते हैं, बिकॉज ऐश्वर्या राय आई है, सनी लियोनी आई है, तो सब चाहते हैं कि मैं क्या पहन रही हूँ। और पहली बार मेरा ड्रेस इतना अच्छा था, तो इस बार मुझे काफ़ी ड्रेस डिज़ाइनर ने ऑफर किया कि हमारा पहनो। और ये ड्रेस है दाहिद सरकीस का, जो टर्की से बन के आया है, एंड उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ये ड्रेस मेरे नाप का बनवा के भेजा है। कोमल, एक चीज़ और, रीजनल फिल्मों का बोलबाला कान के रेड कार्पेट पर इस समय खूब दिख रहा है। मणिपुर के कलाकार दिख रहे हैं, आप आई हुई हैं, कई और कलाकार दिख रहे हैं। कैसे देखें भारत की रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की बढ़ती हुई ताकत को, किस तरीके से देखा जाए? ऑब्वियसली बिकॉज हमारे पास कल्चर है, वो रिलेशन है। जैसे हम देखते हैं नाना, दादा, दादी, बुआ, फूफा, इतने ज़्यादा रिलेशन है और हम लोग सबसे अटैच है। जब आप फॉरेन कंट्री में आते हैं तो आपने देखा है अंकल, आंट, मॉम, डैड, दैट्स इट। बट हमारे पास कल्चर है और ग्लोबली जब वो लोग देखते हैं, बाहर आता है, जैसे आपने देखा नाटू। सो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर जो फिल्में बनती है और जब हमारा कल्चर बाहर आता है ग्लोबली, सो इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। भारत के हर राज्य में विविधताएं हैं। गुजरात से आप आती हैं, गुजरात का पहनावा, गुजरात का खान पान तो अपने आप में प्रसिद्ध है ही, लेकिन गुजरात के ट्रेडिशन में अगर हम बात करें आउटफिट्स की, तो आपको लगता है कि ये ट्रेडिशन ही कहीं ना कहीं, चाहे हर स्टेट का ट्रेडिशन जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा रहा है? बिल्कुल, बिकॉज हर इंडियन एक्ट्रेस पहले साड़ी में आती है, तो मैं भी पहले मेरा फर्स्ट रेड कार्पेट साड़ी में था एंड आई लव साड़ी। तो वो ब्यूटी दिखती है आपकी, यू नो, और इंडियन कल्चर आपका प्रेजेंट करते हैं। जैसे सारा अली खान है, वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आई थी। इससे पहले विद्या बालन जी है, तो काफ़ी एक एक्ट्रेस है जो साड़ी में या इंडियन कॉस्ट्यूम में आई थी। सो वो हम अपना कल्चर प्रेजेंट करते हैं। जब दूसरी बार आपको फिर पता चला कि कान जाना है, क्या वो उस समय एक्साइटमेंट था? बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स को, बिकॉज वो चाहते थे कि मैं रेड कार्पेट पे आऊँ और हमारे गुजरात का नाम रोशन करूँ। गुजरात के लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है ये? बहुत बड़ा, बिकॉज हम फर्स्ट एक्ट्रेस जो रेड कार्पेट कांस में आई है, सो बहुत बड़ी बात है और वो वेट कर रहे हैं कि कब मेरे फोटोज बाहर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो गुजराती कलाकार हैं और रेड कार्पेट पर चली है और रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरने के बाद हमसे बातचीत हो रही थी और दूसरा मौका था उनका जब रेड कार्पेट पर वो चली हैं और संभवतः गुजरात की एक्ट्रेस, ये पहली एक्ट्रेस हैं जो रेड कार्पेट पर पहली बार तो छोड़िए दूसरी बार आई हैं। तो भारत एट कान में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कान की गलियों की हलचल को लेकर और जानेंगे क्या कुछ खास रहा भारतीय पवेलियन में और कौन से वो सितारे भारत के रहे जो रेड कार्पेट पर नजर आए। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।